Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Yeah, Vijay Mata, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Danvat Pranam. Thank you, as always. Excellent lecture, very good points, and Paddy ka example was also very nice. Prabhuji just wanted to share a few things, and then I had a question also. So, influence of time. वो किसी को नहीं छोड़ता है. वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन. So I just wanted to connect it with Dhritarashtra ka, because at least zyada log Dhritarashtra ki tarah hi hai, with so much asakti and material attachment. And Dhritarashtra ke liye Vidur ji had to come to take him away, because literally death was knocking on the door for him, he still did not understand. सो हमारे लिए भी सोचना चाहिए कि डेथ इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, एंड हमारे टाइम से हम क्या कर रहे हैं रोज. दैट्स समथिंग दैट वी हैव टू पॉन्डर एंड थिंक अबाउट सीरियसली. But somehow whatever said and done, duties mein we kind of get caught up and don't give importance to this. Prabhuji, I don't know, that awakening has to happen, at least for me. एंड दूसरा आपने ये भी टच किया अबाउट अपराध. सो धृतराष्ट्र भी विदुर जी का mercy and grace mila, but ultimately he only got liberation. He was not able to get devotional service kyunki wo itna Vaishnav aparad ya he was totally inimical towards the Pandavas. So wo bhi hamare activities mein wo definitely have to keep that in mind. Even by thought should not hurt a Vaishnava. And मुझे एक और एंड प्रभुपाद जी ऑलवेज लीड्स एवरीथिंग अप टू भक्ति. आपने वो भी बहुत स्ट्रेस किया. आई थिंक मैं पहले भी ये बता चुकी थी, बट जस्ट थॉट आई शेयर अगेन. भगवत गीता में भी कर्म योग ध्यान योग के बारे में लीड्स टू चैप्टर 12 which is bhakti yoga, and chapter 13 which starts from jnana yoga and ultimately results in chapter 18 which is again bhakti yoga. So stress is always there, and somehow that should be the takeaway. Even if we get caught up ये थोड़ा सांख्य philosophy में a deep knowledge वो आ रहा है, तो भी it is like the purpose goal, जैसे आपने बताया, should not forget about the goal. What is the point in beating the paddy when the the grain is not there? प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था, जस्ट एक्चुअली क्लैरिफिकेशन, वो कर्म योग एंड कर्म मिश्रा भक्ति के बारे में. सो इफ आई एम राइट, माय अंडरस्टैंडिंग इज राइट, आप करेक्ट कर दीजिए. कर्म योग में भक्ति क्वोशंट इज मोर, whereas karma mishra bhakti mein I think the bhakti quotient is less, because it just kind of has some flavor of bhakti but more of karma. Prabhuji, if you can share your thoughts on that, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, it's what, or maybe instead of speculating, we'll check with some senior person, because yeah, कर्म मिश्र में होता है कि जो भक्ति जो है, it's in very less proportion. मतलब भक्ति कर रहा है, लेकिन whereas in कर्म योग all his activities are towards मतलब कर्म ही कर रहा है, but it is devoted towards the Lord. So in कर्म मिश्र, yeah, you can say उसका जो भक्ति का जो proportion है, it's less. You can say that, but still we will check with some senior devotee. Okay, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Pranam. Thank you, Mata, for sharing your thoughts on this. Very nice points. And जैसे धृतराष्ट्र का जो उदाहरण
what you shared was really fantastic and really should be pondered. क्योंकि बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र अगर देखे तो he always behaved, जो है ना, ऐसा मतलब मतलब ऐसे लगेगा कि ये सभी का बात सुन रहा है, पांडवों का भी बात सुन रहा है और दुर्योधन का भी बात सुन रहा है, शकुनी का भी बात सुन रहा है. सो एवरीबडी विल थिंक दैट ही इज फॉलोइंग, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल थिंग. He always had his own intentions in his mind and he followed that. So इसीलिए उसने इतने अपराध भी किए. सारा महाभारत अगर हम लोग देखें तो द मेन कॉज वाज धृतराष्ट्र, नॉट इवन. अगर दुर्योधन को बचपन में डांट के उसको 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 दंड दिया होता, बोले तेरा ये तेरा नहीं है, गिवन, तो ये इतना नहीं होता था. बट ही केप्ट फेडिंग हिज माइंड, ये तुम्हारा है, यू शुड टेक इट, यू शुड टेक, एंड दैट्स व्हाई दैट फ्यूडल दैट वो जो है ना उसका माइंड इंस्टिगेट करता रहा, एंड ही केप्ट फाइटिंग फॉर दैट, एंड इट कल्मिनेटेड इनटू इतना बड़ा जो महाभारत का जो युद्ध हुआ वो हुआ. सो इससे हम लोग धृतराष्ट्र के कैरेक्टर से ये भी सीख सकते हैं कि one thing we have to understand properly and we have to act. कि अगर कोई बात समझ में आती है हम लोगों को तो एक्शन भी लेना है. ऐसा नहीं प्रभु यू आर राइट, ओके प्रभु यू आर राइट, नहीं यू आर आल्सो राइट, नहीं, नॉट एवरीबॉडी इज राइट, somebody is wrong, so we have to tell no you are wrong. एंड इनका ये जो नेचर था वो हम देखते हैं युधिष्ठिर, सॉरी विदुर जी, he acted like his guru, he really chastised him. मतलब एक पालतू कुत्ते की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब लिटरली इन दैट लैंग्वेज ही हैज टू टेल यू आर एक्टिंग लाइक ए डॉग, क्यों कुत्ते की तरह इनका खाना खा रहा है, लिव ऑन दिस. एंड देन वो उसको स्ट्रक हुआ, अरे ये मैं आई शुड नॉट बी डूइंग दिस. सो समटाइम्स हिटिंग हार्ड इज इम्पोर्टेंट. So it is very, very important. First thing is understanding, and second is action. And it's not always in an offensive manner. अरे नहीं you rascal, तुम ऐसा मत कर, नहीं. As per our position, as per his position, we should say, okay, अगर वो senior है तो please don't do this. Even junior भी है तो you cannot chastise him because वो हमारा चेला नहीं है, हमारा डिसाइपल नहीं है ना, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. सो इवन इफ इज जूनियर, सम पीपल इमीडिएटली स्टार्ट चैस्टाइजिंग. मतलब छोटा सा है या 6 महीने से आ रहा है तो इमीडिएटली उसको बुरा बुरा बोलना शुरू करते हैं. वी शुड नॉट डू दैट. विद दे मे रन अवे, सो प्यार से उसको समझाना चाहिए एंड वी कैन करेक्ट. करेक्शन is very, very important. If we see something wrong, and it should be in a very polite manner which he can उसके लिए गल्पेबल हो, he can digest, और उसको समझ में आए. नहीं तो हो सकता है कि वो भाग जाए. मेरा नाम है. थैंक यू माता फॉर सच वंडरफुल पॉइंट्स. यस श्री प्रिया माता जी, हरे कृष्ण. Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam to all the devotees. Prabhu, it was a very, very nice class. Thank you so much, Prabhu. My question was here, Prabhu, आपने बताया कि जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं हमको समझना है कि हम लोग सत्वगुण में कर रहे हैं, रजोगुण में कर रहे हैं, तमोगुण में कर रहे हैं. तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट प्रभु, कैसे पता चलेगा हमको? All we have to do is we have to understand Bhagavad Gita. What is the symptoms of tamoguna, what are the symptoms of rajoguna, and what are the symptoms of sattva-guna. तो उनको not each and every action, at least जो अगर बोलते हैं ना मोटा मोटा अगर हम लोग समझ ले तमोगुणी जो है कैसा होता है या सत्वगुणी कैसा होता है. It's simple, in simple language if you see, it's tamogunis are ignorant, they are lazy, and they are dull. Whereas a rajoguni person is very active and is always bossing. तुम ऐसा मत करो, तुम ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा. Is always trying to take the charge of everything. That is rajoguni. Sattva-guni is more inclined, but still ऐसा नहीं है. Sattva-guni means he is 100% sattva-guna. He has tamoguna also and he has rajoguna also.
and that's why he is Satyaguni. So basically, if we see, if a simple like thing, like if I'm taking care of my family, so whether that action, what is the purpose behind it? If we understand that, मैं क्यों कर रहा हूँ? Whether it is my I should be praised or I should be ऐसा कुछ है, or my purpose is to bring together उनको साथ में लाए, somehow get into Krishna consciousness, थोड़ा सा उनको भक्ति मिले, भले मतलब उनको कोई भौतिक कार्य करना पड़े, उनके साथ पिकनिक चले गए या whatever it is, but the cause or the purpose behind it should be spiritual. So we can identify, we can take any of our actions and we can identify. Just he has to do it because I am telling it is Rajoguni. So we can identify that way. I hope that gives some idea, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mata. Hare Krishna. Yes, Vinti Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक वैष्णव अपराध के उसमें मेरे जो अपने वो विचार थे ये कि पहले तो आइडेंटिफाइंग वैष्णवास, दूसरा ये कि वैष्णवास के प्रति अपराध करना मन से या कर्म से या जैसे भी, तो जो मैंने मतलब समझा अभी तक सब कुछ सुन के कि हम किसी के भी प्रति अपराध मतलब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, दैट इज व्हाट इज अपराध, राइट प्रभु जी? किसी के बारे में गलत सुनना, किसी की कमियां देखना, दोष दृष्टि, बेसिकली दोष दृष्टि जो है अगर हम किसी के अपने चित्त पे रख रहे हैं तो वो अपराध हुआ। अब अगर वो वैष्णवों के प्रति कर रहे हैं तो वो वैष्णव अपराध हुआ। अगर हम किसी और के जिसको हम वैष्णव नहीं कह रहे हैं तो वो उनके प्रति, और ये भी हमें अच्छी तरह पता है कि जो अब सुना है, 2 स्टोरीज से सुना था कि जो अगर हम किसी के दोषों को डिस्कस करते हैं, किसी के दोषों को अपने चित्त पे, तो उनके सारे जो पाप कर्म उनके हैं वो हम एक तरीके से हम ले लेते हैं। तो एक भर्तृहरि का एक ऐसे स्टोरी सुना था कि भर्तृहरि जो थे वो और राजा विक्रमादित्य को उन्होंने एग्जाइल कर दिया, फिर भी उन्होंने उनकी रानी की कोई वो नहीं बताई, जो कुछ भी उनका था, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहे एग्जाइल हो जाऊं लेकिन उनकी अगर मैं कमी उजागर करूंगा तो वो सारे रानी के पिछले जितने जन्मों के पाप कर्म है वो मैं ले लूंगा, और हम अपने ही पहले ही अपने ही इतने पाप कर्म ढो रहे हैं। तो और दूसरों के तो मेरा इसमें यही था कि क्या मैं ये सही सोच रही हूँ कि एक ये भी एक तरह का वो होता है, संस्कार होता है, मतलब आदत होती है कि अगर हम सब में ही दोष दृष्टि देख रहे हैं तो वैष्णवों में भी हमें देखने की मतलब आदत सी पड़ी हुई है, तो हम सभी में देखेंगे। तो एम आई राइट कि ये जो हम दूसरों में कमियां देखते हैं या किसी का हम कहते हैं अरे इसने ये ठीक नहीं किया, उसने वो ठीक नहीं किया, तो ये एक आदत ही होती है। अगर हम ये अपनी आदत सभी के लिए अगर वो कर दें कि किसी की दोष देखना बंद कर दें, ये वाली आदत अगर हमारी, तो आई थिंक फिर हम वैष्णव अपराध करने से और भी ज्यादा बचने के लिए हमारी वो कैपेसिटी हो जाएगी। तो एम आई थिंकिंग इट राइट कि नॉट जस्ट वैष्णवास अपराध, मतलब हमें इन जनरल अपराध से बचना चाहिए इन जनरल, क्योंकि वो हमारी आदत ही बन जाती है फिर। थैंक यू माता, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा विचार है। एक्चुअली इफ यू सी जो वैष्णव अपराध है या अपराध है अगर हम लोग लें तो इट्स अ वेरी वास्ट एंड वेरी ह्यूज टॉपिक। तो ये अभी आगे भी आएगा, 21 से लेकर 27वें श्लोक में कपिल भगवान इसके ऊपर चर्चा भी करने वाले हैं। ड्यूरिंग दैट वी विल अगेन churn this topic, लेकिन just in short मैम try to cover this। एक तो है जैसा दोष दृष्टि होता है लोगों में, सो वो क्या करते हैं, चाहे जनरल हो या कोई भी हो, मतलब उनको इमिडिएटली दिखता है कि अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज इन जनरल। दूसरा है वो वैष्णवों में देख रहा है,
अब यहाँ पे हम लोगों को अपराध जो है अच्छी तरह से समझना है कि अगर समझो कोई, जैसे बहुत से लोग हैं देखते हैं, अरे इसका चैंटिंग बीट में कितना गंदा क्यों है, या एक कुर्ता ऐसा क्यों है, ये साड़ी ऐसे क्यों पहनी है, तो इट्स वेरी, है ना, एक ह्यूमन नेचर है वो, एक दोष दृष्टि करने का, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये क्यों आता है, बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्फ एज समथिंग सुपीरियर, और मेरा ये राइट है कि मैं इसमें ये दोष देखूंगे, और बिकॉज ऑफ दैट वो फिर जो मेंटेलिटी है वो इतना बढ़ जाता है कि वो हर किसी में दोष देखना शुरू करता है। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु क्यों कहते हैं हमको नम्र होना है, वाई ही सेज दैट इसको कंठ में हम लोगों को एक माला की तरह, एक नेकलेस की तरह पहने रखना है, बिकॉज अगर ह्यूमिलिटी है उसमें तो वो हर किसी को अपने से ऊपर देखेगा। वो भले वो एक, भले ही एकदम गरीब वैष्णव हो, मतलब उसने कपड़े ढंग से नहीं पहने, लेकिन वो जब देखेगा वो वाह वाह कितना बढ़िया भक्त है ये, कि 16 माला का, उसको मतलब उसके जो शॉर्ट कमिंग्स है वो नहीं दिखाई देंगे, उसको उसके गुण दिखाई देंगे। अरे यार ये तो हमेशा सुबह जल्दी उठता है, 4 बजे उठता है, हमेशा मंगला आरती कभी आज तक इसने मिस नहीं किया, ये 16 माला पूरा फोकस के साथ करता है, हिलता नहीं है, बात नहीं करता है, प्रसादम भी ग्रहण कर रहा है तो ही इज वेरी फोकस। ऐसा नहीं प्रसादम करते करते व्हाट्सएप है या फेसबुक देख रहा है या बात कर रहा है, नहीं। सो उसका जो नम्रता है वो उसको एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में रखता है उसको, और ये ह्यूमिलिटी नहीं होता है, इसके कारण फिर वो दूसरों में, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है, दूसरों में दोष देखना शुरू करता है। तो ये एक हो गया एक एंगल कि वी हैव टू बी फर्स्ट, अगर इसको पूरी तरह से काटना है तो नम्र होना है, लेकिन बीइंग नम्र इज नॉट एन इजी थिंग। हम लोग वर्बली हो सकते हैं, लेकिन इट हैज टू बी फ्रॉम हियर, माइंड से हम लोगों को know कि हाँ मैं तुच्छ हूँ। जैसे मैं और मेरे फ्रेंड, पुराने फ्रेंड है, उनसे एक बार बात कर रहा था, तो जब ऐसे बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु मैं तो एकदम तुच्छ हूँ, गिरा हूँ, मेरे जैसे पापी कोई नहीं है, तो बोले उसको सही में बोल दो, हाँ प्रभु तुम्हारे जैसा तो पापी आज तक मैंने देखा नहीं कहीं पे, तुम इतना गिरा हुआ है, इतना। उसको शौक लग जाएगा, अरे ये क्या बोल रहा है, मैं तो ऐसे बोल रहा था, लेकिन ये तो मतलब मुझे तुच्छ बोल रहा है, पापी बोल रहा है, नहीं नहीं मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं। सो अगर वो वर्बल है तो उसका दिमाग में वही चलेगा, सिर्फ बोलेगा लेकिन उसका माइंड में नहीं। लेकिन एक सही में किसी इवन हम देखते हैं नारद मुनि जी, मैंने सुना था परम पूज्य भक्ति प्रेम गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि वो सो हम, वो कंस को देखते थे, कंस को दंड प्रणाम कर जाते उनके सामने सीधा फ्लैट एकदम, ऐसा नहीं कि ये पापी है, राक्षस है, कितना दुर्गुण, नहीं, सी हिज फ्रेम ऑफ माइंड। नारद मुनि, नारद मुनि जी जब कंस को देखते हैं इमीडिएटली दंड प्रणाम, अरे ये तो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचता है, भले वो नेगेटिव वे में सोच रहा हूँ, लेकिन ही इज ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस। सो वो नारद मुनि कभी कंस के प्रति भी अपराध नहीं करते थे। सो हैविंग अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं तुच्छ हूँ ये समझना, और ये कल्टीवेट करना माइंड में। इसके लिए कृष्णदास बाबा जी महाराज वो बोलते हैं, सोच सुबह उठ के पहले अपना चप्पल लो, अपना स्लीपर्स लो, अपने सर पे मारो उसको, माइंड कीप बीटिंग योर माइंड। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर जस्ट वर्ड्स। जनरली आई सी, मतलब इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, पीपल आर जस्ट वर्ड्स, मतलब लिप सर्विस है वो एक्चुअल एक्शन में बहुत कम दिखता है। एंड देयर आर वेरी फ्यू, वेरी हार्डली फ्यू डिवोटीज हु आर, बोलते हैं ना, वॉक द टॉक। तो एक्शंस में अपने वर्ड्स को लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो जब होगा, वो नम्रता होगा, तो ऑटोमेटिकली वो अपराध भी नहीं करेगा। तो कम्स की तरह उसमें भी वो भले कितना पापी हो, लेकिन कोई बोलेगा अरे प्रभु ये देखो ये प्रभु आए हैं। ओ, जैसा मैं मेरा केस बता दूं, शायद पहले भी शेयर किया होगा। मैंने जब
भक्ति शास्त्री जब नहीं किया था, जब हर किसी को देख के मैं वो कितना शुद्ध भक्त है कि मतलब एक ही थॉट आता था, कितना कितना नसीबवान है, कितना भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी के शरण में है। लेकिन जब भक्ति शास्त्री, जब मैं उपदेशामृता में जब पढ़ाया गया कि कनिष्ठ भक्त होता है, मध्यम भक्त, उद्धम, तब मेरा दिमाग में ये होला कि कनिष्ठ भक्त भी होता है, उत्तम भी होता है। एंड देन माय माइंड स्टार्टेड ड्वेलिंग ऑन दैट। तो बिकॉज ऑफ दैट I started seeing, oh ये कनिष्ठ भक्त है, oh ये उत्तम भक्त, oh ये मध्यम भक्त है। But that is all, मतलब immediately, not state of mind में ज्यादा नहीं रहा। Immediately asked, मैंने पूछा मेरे सीनियर से, बोले कि नहीं, this is not for seeing others। ये जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त, ये तुम कैसे उनसे डील करना है उसके लिए है। ऐसे नहीं जो कनिष्ठ भक्त है वो अभी 2 दिन से आ रहा है, उसके तुम चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया एकदम, मेंटली यू कैन डू दैट। लेकिन दैट विल, मतलब एक मतलब एनवायरमेंट में कोई 50 साल से 30 साल से है भक्त है, वो किसी 2 दिन से आए हुए भक्त को प्रणाम करेगा तो कैसा लगेगा। सो मेंटली यू कैन डू दैट बिकॉज ही इज अ डिवोटी। लेकिन we have to identify and we have to deal accordingly। तो ये एक है। और मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, ये समझने के लिए कि तुम कनिष्ठ भक्त हो या मध्यम पे हो या उत्तम पे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अवरसेल्फ, नॉट टू सी अदर्स। नॉर्मली जब हम लोग फिलोसफी देखते हैं तो वी स्टार्ट, ओ ये ऐसा है, हम लोग अपराध के बारे में, ये अपराध कर रहा है ये, लेकिन कभी जब अपराध की बात है तो ये याद नहीं आता, अरे मैंने ये अपराध किया था, ओ मैं इतना अपराधी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा। सो पूरा जो फिलोसफी है, दैट फिलोसफी इज फॉर क्या बोलते हैं, अपने आप को गढ़ने के लिए है, दूसरों को देखने के लिए नहीं। इट इज टू बिल्ड अवर ओन एटीट्यूड, अवर ओन नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंट था। एंड अदर पॉइंट व्हाट स्ट्रक मी वाज, जब रेक्टिफाई की भी जब बात करते हैं किसी के बारे में, जैसे आपने कहा डिस्कस के बारे में, तो श्योर वी कैन डिस्कस, बट वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। मुझे किसके साथ डिस्कस करना है। अगर किसी भक्त में हमने कोई दुर्गुण देखा, अरे ये प्रभु तो मतलब ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कर रहे हैं, तो वी कैनॉट गो एंड इमीडिएटली टेल हिम। उसका पोजीशन देखना पड़ेगा, अपना पोजीशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे पहला बात, व्हाट इज हिज लेवल, व्हाट इज माय लेवल, ये आइडेंटिफाई करना है। एंड किससे बात करना है ये हम लोग को समझना। एंड विथ व्हाट मूड, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे से नीचा है, देखो मैं कितना। बहुत से भक्त लोग इसीलिए करते हैं, तो जो अब दोष दृष्टि होता है इसके लिए, ओ देखो ये ऐसा करता है, ओ देखो ये ऐसा करता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है, देखो वो कोई 6 बजे उठ रहा है तो वो देखो ये 6 बजे उठता है, वो बताना चाहता है कि मैं 3 बजे उठता हूँ। सो दैट इज नॉट द मूड। पूरा भक्ति जो है डिपेंड्स ऑन ह्यूमिलिटी, नम्रता पे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इतना जोर देते हैं कि त्रिनादपि सुनिचन तरोरिवसा। इसको मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, इट हैज टू बी वोन, दैट जेम हैज टू बी वोन, दैट एटीट्यूड हैज टू बी वोन। हम लोग इसको अपने मन में उतारना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जब बता रहे हैं, इट्स नॉट ये हम लोग को बुरा लगना चाहिए कि अरे ये भक्त है, इतने साल से है, लेकिन फिर भी ये ऐसा कर रहा है। जब मैं इतना 6 महीने से आया हूँ, साल भर से आया हूँ, मुझे जब दिखता है तो दूसरों को कितना दिखता होगा, विच इज रॉन्ग। और ये जस्ट विद द मूड ऑफ करेक्टिंग हिम इन द राइट वे, नॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, नहीं। वो करेक्शन उसमें होना चाहिए। अगर वो मूड है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो इट इज ओके, हम लोग के दिमाग में आता है, दिखता है हम लोग, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी आर इंटेलिजेंट पीपल। अरे ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो इमीडिएटली स्ट्राइक होता है हमारा। जो कुछ फिलोसफी सीखा है हम लोग पकड़ लेते हैं। जो फिलोसफी नहीं सीखा है तो फॉर हिम इट इज ओके, उसके लिए सब कुछ इग्नोरेंट इज ब्लिसफुल।
तो जिसको ज्ञान नहीं है वो हमेशा आनंद में रहता है, लेकिन ज्ञान आने के बाद ही बिकम्स मोर एनालाइजिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी। तो जब एनालाइज करता है तो then, अच्छा ये जो है ये गलत कर रहा है, ये जो है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड, कुछ नहीं कर पा रहे, हम लोग किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो वी शुड प्रे टू द लॉर्ड, भगवान प्लीज ये बहुत अच्छा वक्त है, इसके लिए आप कुछ करो। यू शुड प्रे फॉर हिम। नहीं तो वी शुड आइडेंटिफाई एंड वी शुड, है ना, विद द मूड ऑफ करेक्शन, उसका ये भक्त भक्ति में आगे बढ़े। नहीं तो वो उस छोटे से चीज के लिए अटक जाएगा। तो विद दैट मूड वी शुड डू दैट। सो एक्चुअली इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा सकते, बट जस्ट मैं बोल सकता हूँ, एंड आई होप दैट हेल्प्स। विनती माता, हरे कृष्णा। Yes, thank you, Prabhuji. Thank you. Thank you for your inputs. Hare Krishna. थैंक यू माता। यस, विजय माता जी कुछ बोलना चाहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली आपने टच किया विद रेक्टिफिकेशन, बिकॉज नेचर, किसी का स्वभाव और पर्सनालिटी ऐसा है कि इमीडिएटली वी नो वी स्लॉट इट। पर जैसे हम आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, एंड द आउटकम ऑफ दैट प्रोसेसिंग। बिकॉज दोष देखना करेक्शन के लिए, जैसे आपने कहा ना प्रभु जी, बिकॉज इफ इट्स अ पेरेंट, child, or a teacher, a student, यहाँ भी guru शिष्य, definitely वो guru या a person who's in the superior position, वो दोष दे के correct करना चाहिए, because उसका भी वो responsibility है ना। नहीं तो जैसे as we discussed, वो धृतराष्ट्र सब दुर्योधन हो जाएगा then। So we can't let them be also without correcting the faults। पर how we process the faults, because agar we see that in a senior and it is affecting us, so maybe uska uska peer ya uska bhi senior se hum we can take directions on how to deal with it। but aapne sahi bataya ki very important point, or mood and purpose, because kiske liye hum kar rahe hain, to establish our own our own what to say superiority, और अभी मुझे ये पता है, so I am doing ऐसा, और I have a better quality than that person, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों definitely it will come to sight and we will know, particularly if we are in that position। जैसे आपने कहा ignorance is bliss, definitely would love that, but unfortunately even as a teacher, right, a material teacher first भी आता है, पर वो प्रोसेस करके rather than reacting, मैं टीचर हूँ, you better listen to it, not like that, but from a rectification purpose, because I want you to progress, and bhakti mein that thought hai, to whether it is a senior or junior, then I think at least my takeaway, it's okay to discuss in the right way। Hare Krishna Prabhuji, thank you, Dandavat Pranam। Yeah, thank you Mother, very nicely said that। और वही सारा जो जो पर्पस है, सॉरी, सारा जो भक्ति का प्रोसेस है, उसमें पर्पस behind each and every action what we do is important। so that defines our nature, that defines where we will go, हमारा पर्पस क्या है। तो जैसे आई आई डोंट नो, आई मतलब मुझे दिखता है, आई सी इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट आई नेवर टॉक अबाउट इट, मैं सोचता भी नहीं हूँ ऐसा। ठीक है, चलो ये दिख गया, भगवान, आई जस्ट प्रे फॉर हिम, भगवान इसका ये ठीक कर दो, इसका ये ठीक कर दो। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू, बिकॉज उसका वो स्वभाव है। वेरी नाइस एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति था, एक वैष्णव, जो जप करते हुए एक समुद्र के किनारे से जा रहा था, एंड ही सॉ एक बिच्छू को डूबते हुए देखा, तो स्टार्टेड सेविंग हिम। लेकिन बिच्छू का कैसा, उसको कोई पकड़ता है तो उसको डंक मारता है, तो वो उसको डंक जैसे ही लगता है वो छोड़ देता है पानी में, फिर वो डूबने लगता है अगेन। सो वी नो दैट स्टोरी। सो बिच्छू का स्वभाव जो है डंक मारना है, और हमारा स्वभाव जो है, हमको अपना स्वभाव नहीं चेंज करना है। बिकॉज इफ समबडी इज बैड, वी डोंट हैव टू बी बैड। बिकॉज अगर हम बुरे बनते हैं तो आई एम गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मैं मेरा पूरा जो है
डेस्टिनेशन चेंज कर रहा हूँ. सो आई डोंट हैव टू बी लाइक इट. वो बिच्छू है, उसका काटने का समय है, उसको करने दो. इफ somebody is doing wrong, वो मेरे बारे में बुरा बोलता है, कुछ उंगली कर रहा है, कुछ कर रहा है, दैट इज भगवान देखेंगे ना उसको, मुझे क्या करना है उसको. सो वी डोंट हैव टू इंटरफियर व्हाट इज बिटवीन लॉर्ड एंड हिम. वो भगवान उसको देख लेंगे. मैं ये कोशिश करूं, हाँ मेरे संपर्क में है, इज इन माय सर्कल, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई. प्लीज, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? वो मानता है ठीक है, नहीं मानता है हरी इच्छा सोच के प्रणाम करो एंड छोड़ दो, वो अपना जप कर. जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग उपदेश अमृत में देखते हैं, इवन जो कनिष्ठ भक्त है उसको हमको मेंटली प्रणाम करना है. व्हाई इज दैट? क्यों? वो वैष्णव है, भगवान को नाम ले रहा. इवन जो एक दिन से भगवान का नाम ले रहा है. हम लोग चैतन्य चरितामृत देखेंगे, जब चैतन्य महापुरुष से पूछते हैं वैष्णव कौन है, तो 3 अलग अलग डेफिनेशन दिया. तब वो बोलते हैं कि एक बार भी जिसने भगवान का नाम ले लिया वो वैष्णव है. So we have to understand that, and we have to just pray कि भगवान मुझे अपराधों से बचाए, मैं कभी अपराध में ना पड़ूं, प्लस जो मुझे दिख रहा है मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं. आई शुड बी एबल टू हेल्प, मैं किसी तरह से उसकी हेल्प कर पाऊं. भाई तुम ऐसा मत करो. हमारा जिस किसी प्रेम से या जैसे भी है, ट्राई टू रेक्टिफाई. इफ नॉट, बस प्रणाम करो एंड लीव इट टू हिस. उसके जो कर्म है उसके ऊपर उसको छोड़ दो. बिकॉज कर्मा इज वन थिंग विच इज गोइंग टू एक्ट. कर्मा कभी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि हमको किसी को नहीं दिख रहा है, मैं जो कर रहा हूँ किसी को नहीं पता चल रहा है, लेकिन कर्मा एक चीज है जो घूम के फिर से आती है. इट में टेक 1 year, इट में टेक 10 years, इट में टेक 10 जन्म. हम देखते हैं धृतराष्ट्र का जो उदाहरण है, 51 जन्म के बाद उसको भोगने को मिला. सो इट इज नेवर गोइंग टू गो वेन. इसके लिए हमको ये कोशिश करनी है, आई बिहेव गुड, मैं अच्छा कार्य करूं, मैं अपराधों से बचा रहूं, और भक्ति जितना हो सके उतना अच्छे कर सकूं, ताकि मुझे अगला जन्म भी नहीं देखना है. मुझे इसी जन्म में मैं भगवान के धाम चले जाऊं, ये हम लोग को प्रयास करना चाहिए. सो with that message I will stop here. Thank you very much all for such a nice discussion. Thank you वैजी माता जी, विंती माता जी, श्री प्रिया माता जी. थैंक यू एवरीबॉडी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है. प्लीज डोंट मिस अ सिंगल क्लास. ये जो है बहुत ही कैन से अभूतपूर्व जो है अध्याय है. सो डोंट मिस एंड स्टे कनेक्टेड. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. शील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु वृंद की जय. सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय. मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्णा.